Good morning, students. This is my next video on the topic animal tissue. Animal tissue is divided into 4 types, as you can see there: connective, epithelial, muscular and nervous. So let's start with the epithelial tissue first. I will explain epithelial tissue in detail. In this video I will explain only epithelial tissue. After that I will make another video for connective tissue and then for muscular and nervous tissue. So as you can see there, in epithelial tissue there are simple squamous, stratified squamous, columnar, ciliated, cuboidal and glandular. These are the types of the epithelial tissue and I will explain these types one by one. And in connective tissue, as you can see there, areolar, adipose, ligament, tendon, cartilage, blood and bones. They are the types of the connective tissue. And muscular tissue is of 3 types: smooth, cardiac and skeletal. And nervous is only one type, that is nervous tissue, in which I will explain neurons in detail, a single cell of the nervous tissue. So let's start with the epithelial tissue. As you can see there, epithelial tissue is of 5 types: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. As you can see in the diagrams of these 5 types of epithelial tissue, there are basically difference in the shape of the cells, and there are many types of cells which are multi-layered and single layered. So basically epithelial tissue is present in skin, but there are different type of skin in our body. Like our outer skin is very rough, it is called epidermis. Epi means outer and dermis means, derma means skin. Basically epithelial tissue is that kind of tissue which is present in all type of skin in our body. Like our outer skin is very rough skin, but internal organs having also a very soft skin. Internal organs carry a skin which is multi-layered. So there is basically some differences between the shape, between the texture of the skin. On the basis of these differences, there are different types of epithelial tissue which make difference between different types of skins. So first is squamous. Squamous is basically a tissue which is as you can see there, squamous is basically a structural tissue, single layered, very thin, flat cells. They are flat cells, irregularly shaped. It means its shape is not fixed and they are closely packed with each other. बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं क्लोजली. ये सेल्स हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं. एंड देयर फंक्शन इज़ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस. गैसेस का डिफ्यूज़न बहुत इजीली हमारी सरफेस के साथ हो सके, बॉडी सरफेस के साथ. देखो जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर हमारे एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियल 4 टाइप्स के दिखा रखे हैं. और ये देखिए इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होकर हमारी स्किन की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्किन की फॉर्मेशन हो रही है अगर हम इसे देखते हैं. और यहाँ पर हमारे को इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा रखी है. ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है. और इसके फंक्शन में हमें दे रखा है सप्लाई फ्रिक्शन फ्री सरफेस फॉर ब्लड फ्लो. हमारे को इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये फ्रिक्शन सप्लाई करते हैं फ्री सरफेस पर, मतलब ब्लड इजीली फ़्लो हो सके उसके लिए ये एक फ्रिक्शन देते हैं. एक तरीके से ब्लड को फ़्लो होने के लिए एक हेल्प करते हैं. एंड हमारे को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देते हैं इन अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ को. इसके अगर हम डायग्राम पे जाते हैं तो ये देखिए कितनी क्लोजली पैक्ड है बिल्कुल एक दूसरे के साथ. और एक इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे हमारी टाइल्स फिक्स होती हैं हमारे फ्लोर के ऊपर. तो यहाँ पर बीच में कोई हमारा गैप नहीं है.
ये कहाँ मिलेंगे हमें? लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और लंग्स की लाइनिंग में मिलेंगे। लंग्स की लाइनिंग क्या है? स्किन, मतलब लंग्स जिस स्किन से बनी हुई है तो वहाँ पर भी हमें स्क्वैमस मिलेंगे। माउथ में मिलेंगे, ऑसोफेगस में मिलेंगे। ईसोफेगस भी बोलते हैं उसे हम, फूड पाइप में, फूड पाइप में हमको मिलते हैं। दूसरा आता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए क्यूबॉइडल, यहाँ पर ये क्यूब शेप्ड होते हैं, क्यूब शेप्ड सेल होते हैं, जैसे डाइस होता है लूडो का वैसा क्यूब, ऐसे इस टाइप के सेल्स होते हैं। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? क्यूबॉइडल। ये स्क्वायर सेल्स क्लोजली पैक्ड सिंगल लेयर सेल होते हैं, ये भी सिंगल लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होगा, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम देखते हैं तो लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, मतलब किडनी की जो लाइंस हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर किडनी में हमारे ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा पार्ट होता है, वहाँ मिलते हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स, बेसिकली जैसे हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होती है तो स्लाइवा जहाँ से रिलीज़ होता है वहाँ पर भी डक्ट, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डक्ट कहते हैं, वहाँ पर भी हमको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर मतलब कॉलम शेप्ड, कॉलम शेप्ड का मतलब और भी लंबे सेल्स हो गए, बहुत ज़्यादा इलॉन्गेटेड सेल्स होंगे। न्यूक्लियस जो है वो बेस, सेल के बेस के पास होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होगा। इसका फंक्शन क्या होगा? प्ले अ रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे सेल्स हैं हमारे, तो इसका मतलब ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो समय कहाँ लगता है? डाइजेशन के प्रोसेस में। हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर क्या है? लंबा समय लग रहा है, हमें टाइम लग रहा है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कॉलमनर एपिथेलियल होंगे। ये भी हमारे को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं इस तरीके के, ये हमारे को देखिए लंबे सेल्स हैं कितने, एक एक सेल दिखा रखे हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इस तरीके से इन जगहों पर ओविडक्ट, ओविडक्ट होती है फीमेल्स के अंदर, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इनको, जहाँ पर ओवा, जहाँ हमारा एग जो है वो रिलीज़ होता है जहाँ से, उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे इस तरीके के सेल हैं। तीसरा आता है, अगला आता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। दिस इज नेक्स्ट टाइप। स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ कॉलमनर सेल्स विद सीलिया एट देयर फ्री एजेस। ये भी हमारे सीलिएटेड कॉलमनर क्या होते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर बेसिकली हमारे सेम वैसे ही सेल होते हैं। ये हमारे क्या होंगे? इसके अंदर कॉलमनर सेल्स ही होंगे लेकिन सीलिया प्रेजेंट होगा। अब सीलिया क्या होता है? छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सीलिया होता है छोटा छोटा हमारे मूवमेंट्स करने के लिए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? ये इम्प्योरिटीज़ को हमारे गले में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जहाँ हम सांस ले रहे हैं, विंड पाइप में, वहाँ कोई भी चीज़ अटक गई है तो वहाँ से उसको बाहर करते हैं। तो ये हमारे जहाँ पर छोटे छोटे सीलिया हैं, ये देखो ये रहा, ये लॉन्ग कॉलमनर है और यहाँ छोटे छोटे सीलिया बने हुए हैं। ये इस तरीके से मूव करेंगे और मूव करते करते हमारे जो कोई भी, अगर हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारे विंड पाइप में, ब्रोंकाई में कोई भी चीज़ अगर रह गई है तो उसको ये क्या करेंगे? उसको ये बाहर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगला आता है ग्लैंडुलर कॉलमनर। ग्लैंडुलर कहाँ होते हैं? ये कंसिस्ट क्यूबॉइडल, ये भी क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, दोनों तरीके के शेप के होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई लिक्विड या कोई चीज़ भरी होती है, केमिकल भरा होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनके अंदर म्यूकस होता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए, चिकनाहट देते हैं ताकि कोई भी चीज़ इंटेस्टाइन में या मूव कर रहा है अगर फूड, तो वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, चिकनाहट देने का काम करते हैं। ये रेस्पिरेटरी पैसेज को मॉइस्ट करते हैं, मतलब उसे चिकना रखते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे सांस के जो नली है या हमारे जो लंग्स हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी रुक ना जाए, फंस ना जाए। ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये हमारे पसीना या वैक्स या स्लाइवा भी सीक्रेट करते हैं। ये देखिए इस तरीके के कॉलमनर या सीलेटेड सेल्स होते हैं और उनमें इस तरीके से गोबलेट, ये इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं और यहाँ पर हमारे केमिकल्स भरा होता है। ये हमारे सेल हैं, यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, रेस्पिरेटरी पैसेज में होंगे, स्लैवरी ग्लैंड में होंगे, थायराइड ग्लैंड में होंगे,
सलेवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में होता है, थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में होगा, सीबेशियस ग्लैंड होगा। सीबेशियस ग्लैंड वो होता है जहाँ पे आपका स्किन में होता है, जो जहाँ से पसीना, स्वेट या कोई आपका ऑयल सिक्रीट होता है बॉडी में, जिनकी ऑयली स्किन होती है उधर से। तो ये इस तरीके के हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे। बेसिकली ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कोई डाउट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स। I will make next video on the topic connective tissue, and you can see connective tissue in detail in that video. So I will make this video as soon as possible. Thank you. If you have any doubt, you can comment on my comment box, and then I will solve it and I will reply as soon as possible. Thank you, students.